Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. Class our lesson 8 of grammar is completed and today we are going to start lesson 9. But class, very few students are doing work properly. If I am saying you to please improve your writing, it means you are doing only underline and filling. It means if I am saying then improve your handwriting, it means you have to improve your letters. It means your letters are not proper, that's why I am saying your work is not good. So for improving your writing you have to improve your letters, then your writing will be good and it is very necessary. Okay class, so please be attentive towards your work. So first of all, as you always do, first of all you will mention date and page number. And class, I don't think any student is filling index. मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इंडेक्स फिल भी कर रहा है, तो प्लीज़ आप इंडेक्स को भी फिल करें और बहुत अच्छी तरीके से फिल करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर एंड डेट. देन योर थॉट वर्ब टेल्स अस अबाउट एक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज. देन वर्ब चैप्टर नंबर इज 9. Then chapter number is 9 and the title is verbs. Okay class, then as you all know what is verb is a word which tells about the about the action of the sentence. It means what is happening in the sentence, what subject is doing, which work is going on. Verb tells about the work which is happening in the sentence. That word is called verb. Okay class, so as you can, let's see some examples. Like he is reading book, so what he is doing, he is reading book, so this word is telling about the action. And class, if someone tells you to underline verb, you have to underline the helping verb also. अगर आपसे कोई वर्ब को अंडरलाइन करने के लिए बोलता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब, अगर आप इसको छोड़ के सिर्फ रीडिंग को करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे आई कैन, व्हाट आई कैन डू, ही कैन सॉल्व, वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम. एंड ही इज़ अ प्लेयर, ये एक स्टेट बता रहा है कि वो क्या है, वो एक प्लेयर है, इज़. तो ये क्या है, आपकी वर्ब हैं. ओके, इनको अंडरलाइन कर दीजिएगा. देन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वर्ब्स ग्रुप बाय फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. आपकी जो वर्ब्स होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑब्जेक्ट के बेस से आपकी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड intransitive वर्ब डोंट नीड एन object. Intransitive verb don't need. This is the difference between intransitive and transitive on the basis of object. Then second group is finite and non-finite according to their structure change. Finite verbs change according to tense, person and number. It means finite verb change according to present, past, future. If there is in present, then it will be past, then will be future. They change their appearance according to tense. Person, it means first person, second person, third. Number means singular, plural. According to these things like tense, numbers and person, finite verbs are changed, but non finite verbs don't affect by these things like tense, numbers. It doesn't matter for them that it is present tense, past tense, future tense, it is singular number, plural number, first person, second person और third person. ये चेंज नहीं होती हैं और फाइनाइट वर्ब जो है वो इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. देन ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरीज का दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो हम नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं. तो वो वर्ड जो आपके टेंस में यूज़ होती हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और अदर जो आपके वर्ब होती हैं वो उन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जो आपके टेंसेस में यूज़ होती हैं वो आपकी होती हैं ऑक्सिलरीज, और जो आपकी अदर होती हैं उसके अलावा लाइक कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपकी क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं. ठीक है, सो ऑक्सिलरीज में आपकी क्या आ जाती हैं, ऑक्सिलरी आपकी बी की फॉर्म्स आ जाती हैं. बी की फॉर्म मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन. इफ समवन आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछता है बी की फॉर्म बताइए, तो ये आपकी बी की फॉर्म में है. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीइंग. एंड हैव की फॉर्म कौन सी होती हैं, हैज़,
हैड, हैविंग, ये आपकी हैव की फॉर्म में है और ये सब आपकी ऑक्सिलरीज के अंडर ही आती हैं। देन डू की फॉर्म डिड, डज एंड डूइंग, ये आपकी डू की फॉर्म है। तो ऑक्सिलरीज के अंडर जो आपकी टेंसेज में यूज़ होती हैं मोस्टली, वो होती हैं आपकी बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म एंड डू की फॉर्म। देन मॉडल्स में में आपके ऑट टू, वुड, कैन, शुड, कुड, मस्ट, माइट, में, और ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होती हैं। और उसके बाद आपके एक ऐसी ये कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं which can be used in both ways as auxiliaries, it means in tenses all, and also as models, एंड दीज आर विल एंड शैल। विल शैल को हम इन टेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूचर टेंस में हम इसे यूज़ करते हैं, और एज अ मॉडल भी यूज़ हम करते हैं। ओके, तो ये आपकी मॉडल्स हो गई। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब डीपली। इस चैप्टर में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में डीपली पढ़ेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड होती हैं। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो उसे हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिसे नीड नहीं होती उसे हम इनट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or the subject to an object. So a transitive verb is the verb which denotes an action which passes from subject to object. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो ऐसी वर्ब होती हैं जो ऐसे एक्शन को डिनोट करती हैं जो सब्जेक्ट से के पास से होकर उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे होता है। सब्जेक्ट का जो भी वर्क होता है उसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, और आप ये कैसे हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ ट्रांजिटिव? बहुत इजी है, वेरी इजी। अगर आपका ऑब्जेक्ट हु का आंसर करता है, व्हाट का आंसर करता है और हुम का आंसर करता है, इट मीन्स अगर पर्सन है तो हु और हुम का आंसर मिलेगा, और अगर कोई चीज़ है तो आपको व्हाट का आंसर मिलेगा। अगर इन तीन WH का वर्ड आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है तो वो क्या है आपका ट्रांजिटिव। लाइक आई प्लेड, और आपको बाद वर्ब के बाद का वर्ड देना, यानी कि पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही डिवीज़न होता है। तो हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को नहीं देखना है। सो अगर आई प्लेड, उसने खेला, क्या खेला, फुटबॉल, तो हमें व्हाट का आंसर मिला है, गेम का पता चल रहा है उसने क्या खेला। तो आप इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, और अगर ऑब्जेक्ट आपको हुम, व्हाट और हु का आंसर करता है तो आपका वो ट्रांजिटिव है, अदर वरना वो क्या है, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जो किसी चीज़ के बारे में बताता है, जो किसी चीज़ का नेम होगा या चीज़, मोस्टली वो व्हाट का आंसर करता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट का आंसर करता है वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन टू whom समथिंग इज गिविंग और समथिंग, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स अबाउट द पर्सन फॉर whom समथिंग इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए वर्क किया जाता है, उस पर्सन को बताता है। और आपके एक सेंटेंस में हो सकता है आपको डायरेक्ट मिले, इनडायरेक्ट मिले, और कभी कभी एक ही सेंटेंस में आपको दोनों ऑब्जेक्ट भी एक साथ मिल जाते हैं। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स यानी किसी पर्सन का नेम है, अगर वो कोई पर्सन है, इंसान है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो कोई चीज़ है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट अगर वो व्हाट का आंसर कर रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हु और हुम का आंसर कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट्स सी एन एग्जांपल।
लाइक ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। सो यू हैव टू लीव द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं देना। यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है आपकी टोल्ड, वर्ब कहाँ है आपकी टोल्ड, यानी टोल्ड के बाद का पार्ट हमको देखना है, मी अ सीक्रेट। ओके, सो ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। सो टोल्ड मी, टू हुम, उसने किसको बताया है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो जिस इंसान को बताया गया है वो कौन है, मी, यानी कि पर्सन है, तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसने क्या बताया है, उसको एक सीक्रेट बताया, एक मैटर का नाम है, उसने उसको क्या बताया है, एक सीक्रेट बताया है। सो सिंपल है, अगर कोई प्रोनाउन हो यानी इंसान है वो, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई चीज़ है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो टोल्ड आपकी कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के को पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर ही टोल्ड, उसने क्या बताया, तो अगर सेंटेंस को समझने के लिए हमें आगे के पार्ट को देखना होगा, सेंटेंस के समझने के लिए हमें टोल्ड के बाद का पार्ट देखना ज़रूरी है। और अगर वो व्हाट का आंसर कर रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हु और हुम का आंसर कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये वर्ब आपकी कैसी है टोल्ड, ये आपकी वर्ब जो है वो कैसी है, ट्रांजिटिव है। क्लास आप जो एग्जाम्पल लिखेंगे थोड़ा उसको फैला के लिख लेंगे तो आपके जो पार्ट आएंगे बहुत अच्छे से आएंगे। आप टोल्ड को अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, मी को अंडरलाइन करेंगे तो उसके नीचे लिख देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सीक्रेट को अंडरलाइन करेंगे तो उसके नीचे लिख देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन intransitive verb, it is very simple. An intransitive verb denotes an action which does not pass over to an object. intransitive verb ऐसी होती है जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर पास नहीं होता है। इट एक्सप्रेस, वो एक कोई स्टेट या कोई पोजीशन बताता है या कोई मेंटालिटी बताता है। दिस वर्ब गिव आंसर ऑफ अदर क्वेश्चन, और ये एक्सेप्ट हूम, यानी कि ये जब इन तीन का आंसर करते हैं तो वो ट्रांजिटिव होता है, और अगर इनके अलावा आपको कोई भी आंसर मिल रहा है तो वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव, यानी आपको वाई का मिल रहा है, वेयर का मिल रहा है, हाउ का मिल रहा है, तो इनके अलावा आपको यानी कि इनट्रांजिटिव में इनके अलावा आपको WH वर्ड का आंसर मिलेगा। वॉट, हु और हुम का आंसर अगर मिलता है तो ट्रांजिटिव होता है, इनके अलावा कोई किसी WH वर्ड का आंसर मिल रहा है तो वो क्या है आपका इनट्रांजिटिव। ठीक है, लाइक अगर लेट्स सी सम एग्जांपल, लाइक ही लॉव्स, तो वेयर इज, हाँ, ही लॉव्स, लाइक ही इज प्रोनाउन एंड लॉव्स, हंसना एक वर्ब होती है, तो उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। अगर वर्ब के बाद कुछ लिखा ही नहीं तो वो सिंपली आपकी क्या बन जाती है, इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव अगर आपकी सिंपली वर्ब के बाद कुछ लिखा नहीं तो वो इनट्रांजिटिव ही होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है तब भी वर्ब इनट्रांजिटिव होता है, तो इसे हमें देखना है कि लाइक शी स्टॉप्ड सडनली, शी स्टॉप्ड सडनली, अब वो रुक गई, अब सडनली, तो वो रुक गई, तो कैसे रुक गई, सडनली अचानक रुक गई, तो ये स्टॉप को सडनली की नीड नहीं है। शी का रुकना सडनली पर अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर पास नहीं होता, वो मैनर पता चल रहा है, तो ये क्या है आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव। देन आई एम अ डॉक्टर, आपके बी की फॉर्म से, जिस जो आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई एक्शन नहीं, ये कोई स्टेट है, इंसान की पोजीशन है, तो जो भी बी फॉर्म के वर्ब बनते हैं, यानी कि बी फॉर्म जब एज अ मेन वर्ब आती है, ठीक है, जब बी की फॉर्म, यानी कि अगर बी की जो फॉर्म्स हैं वो टेंस में जब आ रही होती हैं, लाइक इज रीडिंग, एम रीडिंग, आर रीडिंग, वॉज रीडिंग, वर रीडिंग, तो जब टेंस में आती हैं तो यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन कभी कभी आपकी जो बी की फॉर्म होती हैं मेन वर्ब होती है, उनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं होती है, तो वही एज अ मेन वर्ब वर्क करती हैं। तो जब आपकी बी की फॉर्म्स एज मेन वर्ब आती हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, लाइक दिस, यहाँ पे इज आपकी बी की फॉर्म है,
लेकिन इसके बाद मेन वर्ब भी लिखी है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। यानी कि जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आती है तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कभी कभी इनके बाद जब मेन वर्ब नहीं आती है तो बी की फॉर्म में ही एज अ मेन वर्ब यूज होती हैं। तो जब बी की फॉर्म्स एज अ मेन वर्ब्स यूज होती हैं इन सेंटेंस में, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आई एम वॉकिंग लिखा हो तो एम मेन वर्ब नहीं है, लेकिन एम के बाद कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पे एम जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है और ये बी की फॉर्म है। तो जब बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज होती है तो सेंटेंस हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बी की फॉर्म का सेंटेंस है, इट मीन्स अगर बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज हुई है तो सेंटेंस हमेशा इंट्रांजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको व्हाट का आंसर मिलेगा कि आई एम अ डॉक्टर, वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, क्या का आंसर मिल रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बी की फॉर्म का वर्ड है तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, यू विल सिंपली राइट इट इज इंट्रांजिटिव। कीप ने ये बहुत, और मोस्टली ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं कि बच्चे मोस्टली इसमें गलती करते हैं। तो जब बी की फॉर्म यानी कि बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज होती है, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी होती और वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, तो अगर आपको बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब मिल रही है तो आपको वो इंट्रांजिटिव ही जाना है, क्योंकि अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के बेस से देखेंगे तो आपको व्हाट का आंसर मिल रहा होगा। लेकिन एम, क्योंकि ये कोई काम करना नहीं होता, ये एक हमारी स्टेट होती है, पोजीशन शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब। तो ये ध्यान रखना है, बी की फॉर्म जब एज अ मेन वर्ब यूज़ होती हैं तो सेंटेंस हमेशा इंट्रांजिटिव होगा। लेट्स सी एक्सरसाइज। what we have to do, we have to underline verb and we have to tell whether it is transitive or intransitive. Then the star shines in the sky. So द स्टार शाइन, वर्ब कहाँ है आपकी, शाइन, तो वो चमक रहे हैं, कहाँ चमक रहे हैं, तो आसमान में, तो हमें वेयर का आंसर मिल रहा है। तो आपको पता है कि अगर जो वॉट, हुम और हु का आंसर करते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, वेयर आपका क्या होता है, इन ट्रांजिटिव। और स्टार्स का चमकना स्काई को अफेक्ट, उसका एक्शन उस पर नहीं पास हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरा आपको वेयर का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। देन दे बीट अ मैन, उन्होंने पीटा, किसको पीटा, हु, यानी कि किसको पीटा, एक आदमी को पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसको पीटा गया वो पता चल रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव। देन शी परचेज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने क्या खरीदा है, उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी है, तो हमें किसका आंसर मिल रहा है, वॉट का, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव। शी ऑलवेज वीप्स, वो वर्ब कहाँ है आपकी, वीप्स, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमें देखना ही नहीं है, इट इज सिंपली इंट्रांजिटिव। देन ही वॉज अ वेरी बैड बॉय, वो क्या है, एक बैड बॉय है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव क्यों है, हमें एक वॉट का आंसर तो मिल रहा है कि वो क्या है, वो एक गंदा लड़का है, वॉट का आंसर मिल रहा है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, वॉज के बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, यानी कि एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज होती हैं तो सेंटेंस इंट्रांजिटिव ही होता है। टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, टीचर आज वर्ड, टीचर ने क्या पूछा है उससे, एक क्वेश्चन, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखिए इसमें मी है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीम वन द मैच, टीम ने क्या जीता है, मैच, वन आपकी वर्ब है, वन क्या है आपकी वर्ब है, टीम ने क्या जीता है, मैच, तो ये ट्रांजिटिव है। शी स्पीक्स फास्टली, वो बोलती है, कैसे बोलती है, हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि फास्टली उसकी स्पीकिंग, उसका एक्शन उस पर इफेक्ट नहीं होता। आई लाइक राइटिंग, व्हाट शी लाइक, सॉरी, इसमें जो वर्ब है आपकी लाइक है, राइटिंग नहीं, ठीक है, वर्ब जो है आपकी, क्योंकि आईएनजी वर्ब जब बनती है तो उससे पहले इज एम आर वॉज वर आता है, ये ध्यान रखिएगा, आईएनजी आपकी वर्ब जब बनेगी जब उससे पहले इज एम आर और वॉज वर आता है,
तो आपकी वर्ब यहाँ पे लाइक है, आपका वर्ब जो है वो लाइक है, ठीक है। और उसे क्या पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है। देन शी रीड्स, वो पढ़ती है, आपका इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव है। ओके क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर आपका वो हु और वॉट का आंसर मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर हु और वॉट का नहीं, हु वॉट और हुम का मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है। इनके अलावा किसी का मिलता है तो इंट्रांजिटिव है। बी की फॉर्म जब एज अ मेन वर्ब यूज होती है तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होता है। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दो तरीके ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब वॉट का आंसर मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हु और हुम यानी इंसान का पता चलता है जिसके लिए वह किया गया है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो किया गया है यानी कि चीज़ का किसी थिंग या किसी चीज़ को पता चलता है यानी तो वो क्या होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना, कोई इंसान है ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ का नाम है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।